عائشہ سے اللہ کے رسول کا نکاح کیسے ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں جب ہم حضرت سودا کی بات کر رہے تھے تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا؟ اس نکاح کی بات سب سے پہلے کس نے چلائی؟ حضرت خولہ بنت حکیم نے چلائی تھی. وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، ایک ہم سفر کی ضرورت ہے، میں آپ کے حالات دیکھ رہی ہوں، آپ کی بچیاں بھی ہیں، آپ شادی کر لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ تو انہوں نے دو رشتوں کا ذکر کیا، ایک رشتہ حضرت عائشہ کا تھا اور ایک رشتہ حضرت سودا کا تھا. حضرت سودا سے نکاح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے کچھ دنوں کے بعد شوال سن 10 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا. اس نکاح کی بات جب حضرت ابو بکر سے شروع ہوئی تو حضرت ابو بکر نے اس پر ایک سوال کیا، کہا کہ میں تو اللہ کے رسول کا بھائی لگتا ہوں، تو اس رشتے کے اعتبار سے تو عائشہ بھتیجی ہیں، بھتیجی سے چاچا کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا. مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو جواب بھجوایا حضرت خولہ کے ذریعے کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، سگے بھائی نہیں ہیں، ایسا رشتہ نہیں ہمارے بیچ میں کہ ان کی بیٹی میرے لیے حرام ہے. گویا ایک عرب میں ایک منہ بولے رشتوں کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی تھی، اس رسم کو بھی توڑا ہے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نکاح کر کے. حضرت ابو بکر تیار ہو گئے، نکاح ہوا، خود حضرت ابو بکر نے نکاح پڑھایا، 500 درہم مہر طے ہوا اور بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا. نکاح کے وقت صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ کہتی ہے میری عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال کی تھی. اب ہمارے بہت سارے جدید دور کے علماء کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے پاسبل ہے 9 سال کی لڑکی کی شادی ہو جائے، رخصتی ہو جائے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر اور سیرت سے میل نہیں کھاتی ہے یہ بات. تو بعض لوگوں نے اس میں یہ تحقیق نکالی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی عمر 19 برس تھی. وہاں جو بخاری میں جو الفاظ ہے 9 تو راوی سے وہاں 10 کا لفظ چھوٹ گیا ہے، وہاں 10 کا لفظ بھی ہونا چاہیے، 9 9 سال نہیں 19 سال عمر تھی حضرت عائشہ. مگر بھائی یہ ساری باتیں یہ سب بناوٹی باتیں ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 9 برس کی ہی تھی. اگر آپ 9 کو 19 اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے دشمن خاموش ہو جائیں تو وہ 9 کو 19 بنانے سے بھی خاموش نہیں ہوں، وہ تو اس پر بھی اعتراض کریں گے. 19 برس کی لڑکی کی شادی 50 سال کے آدمی سے کیسے ہوگی؟ وہ تو اس پر بھی سوال کریں گے کہ اللہ کے رسول کی 11 شادیاں کیوں ہوئی. تو ہم کس سوال کا جواب دیں گے؟ رہا یہ سوال کہ 9 برس کی عمر میں شادی کیسے ہو گئی؟ ہوتی ہے بھئی ہم اپنے ملک کے ماحول کے حساب سے کیوں ہر چیز کو پرکھتے ہیں، اپنے دور کے حساب سے ہر چیز کو کیوں پرکھتے ہیں؟ آج ہندوستان میں لڑکیاں 13-14 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں، امریکہ وغیرہ میں 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں. بعض ایسے ممالک ہیں جو گرم ممالک ہیں، افریقہ وغیرہ میں، عرب وغیرہ میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں تک موسم ایسا ہے، ایٹماسفیئر ایسا ہے، وہاں 10 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں. اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں، میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے 10 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو سکتی ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں. ایک لڑکی کے بالغ ہونے میں اس کے کھان پان کا، اس کے ماحول کا، اس کی آب و ہوا کا، بہت ساری چیزوں کا رول ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں حضرت عائشہ سے نکاح کیا اس زمانے میں 9 سال کی عمر میں بچیاں شادی کے لائق ہوتی تھیں، اس لیے اس میں کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے. اور یہ نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرایا گیا تھا. سوال اگر ہم کھڑے کرتے تو سوال بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی کھڑے ہو جائیں گے. بھئی اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں تھی، حکمتیں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا 9-10 سال کے آس پاس کی عمر میں اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں، اور مدینہ کی تقریباً 9 برس کی زندگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم زندگی کا حصہ تھا وہ حضرت عائشہ نے بیوی کی حیثیت سے گزارا. اللہ کے رسول کے اوپر قرآن اترتا تھا، قرآن کی آیتوں کو حضرت عائشہ پڑھتی تھی، سنتی تھی، اس کی تفسیر کو سمجھتی تھی. اللہ کے رسول جو باتیں گھر میں بیان کرتے تھے، جو کام کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا، بستر پہ کیسے سوتے تھے، یعنی اللہ کے رسول کی جو نجی زندگی تھی، جو پرائیویٹ لائف تھی، اس کو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک حکمت تھی کہ ایک ایسی عورت کا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے لیے انتخاب کیا جو 9 سے 10 سال کے بیچ کی عمر میں اللہ کے رسول کے نکاح میں آئے. آج بہت سارے ممالک میں یہ قانون ہے کہ یہاں لڑکی کی شادی 18 سال کے پہلے نہیں ہو سکتی، 17 سال کے پہلے نہیں ہو سکتی. اسلام کی نظر میں بلوغت کرائیٹیریا ہے، لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے وہ شادی کے قابل ہو جاتے ہیں. یعنی وہ شادی کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہیں، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اگر اس کے قابل اور اس کے لائق ہے تو شادی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں. حضرت عائشہ کا جو یہ نکاح ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تھا. آئیے اس پر ایک دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں. صحیح بخاری کی 5125
اور صحیح مسلم کی 2438 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ رأیتک فی المنام، اے عائشہ شادی کے پہلے میں نے تم کو خواب میں دیکھا تھا، میں نے تم کو خواب میں دیکھا تھا. یجیء بک الملک فی سرقۃ من حریر، ایک فرشتہ آیا اور ریشم کے ایک ٹکڑے میں تمہیں لے کر کے آیا، ریشم کے لباس میں تمہیں لے کر کے آیا، اور اس نے کہا کہ ہاذہی امرأتک، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی ہیں، یہ آپ کی اہلیہ ہیں. فکشفت عن وجہک الثوب، تو میں نے تمہارا چہرہ کھولا، فرشتے نے چہرہ کور کیا تھا، میں نے چہرہ کھولا تو میں نے دیکھا فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، تم ہو اے عائشہ، اس ریشم کے کپڑے میں تم تھی. فَقُلْتُ، تو اسی وقت میں نے کہا تھا إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْزِهِ، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دکھایا گیا ہے تو ایسا ہو کر کے رہے گا. اور ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں، یہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں کئی جگہ پر لائے ہیں، لیکن میں نے جو بھی الفاظ پڑھے ہیں یہ امام بخاری کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں. اور امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے؟ باب النظر الى المرأة قبل التزویج، عورت کو شادی کے پہلے دیکھا جا سکتا. شریعت نے لڑکے کو ایک بار دیکھنے کی، اس حدیث سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں بھئی اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ کا چہرہ دکھایا گیا، تو حضرت امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ بیوی کو، ہونے والی بیوی کو شادی کے پہلے ایک بار دیکھا جا سکتا ہے تاکہ بعد میں شکوے شکایتیں نہ رہیں. تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے جو نکاح کیا اس میں 3 بڑے بڑے پیغام تھے. ایک پیغام تو یہ تھا کہ منہ بولے رشتے اہم ہیں، بھئی ہم نے کسی کو منہ بولا بھائی بنا لیا، کسی کو منہ بولی بہن بنا لیا، اس رشتے کی اہمیت ہے، مگر منہ بولے رشتے کی بنیاد پر اسلام میں شادی بیاہ کی جو ریسٹرکشنز ہیں، جو پابندیاں ہیں وہ لاگو نہیں ہوتی. ہم نے کسی کو منہ بولا بھائی بول دیا تو وہ اب اس کی بیٹیاں ہماری بھتیجی ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. اسلام کی نظر میں ایسا نہیں ہے. ہم نے کسی کو منہ بولا بیٹا بول دیا، اب ہماری بیٹی کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. شادی بیاہ میں منہ بولے رشتے رکاوٹ نہیں بنیں گے. ایک رسم تو اللہ کے رسول نے اس نکاح کے ذریعے توڑ دی. دوسرا پیغام یہ دیا گیا کہ نکاح انسانی سماج کی تعمیر و ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، اور نکاح بالکل سادہ ہونا چاہیے، ہر قسم کے رسم و رواج سے پاک ہونا چاہیے. اللہ کے رسول پوری دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہیں، آپ کا نکاح بڑی سادگی کے ساتھ حضرت عائشہ کے ساتھ ہو گیا. اور تیسرا پیغام یہ دیا گیا اس نکاح کے ذریعے، یہ نکاح شوال میں ہوا. دور جاہلیت میں شوال کا مہینہ بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا شادی بیاہ کے. کسی زمانے میں شوال کے مہینے میں کوئی وبا پھوٹی تھی، لوگ بہت بیمار ہوئے تھے، بہت مرے تھے، تو لوگوں نے کہہ دیا بھائی شوال میں نکاح نہیں ہو سکتا. شوال میں پابندی ہے. ہمارے یہاں 3, 13, 23 وہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں. بعض لوگ سفر کے مہینے کو، ابھی تو سفر ہی چل رہا ہے نا، شاید سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں تو عورتیں سفر کے مہینے کو تیزی بولتی ہیں. اس مہینے کو تیزی بولنا بھی غلط ہے، حرام ہے تیزی بولنا اس مہینے کو. اس مہینے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تیز ہوتا ہے، یہ بھی جہالت ہے، غلط عقیدہ ہے. اسلام کی نظر میں یہ سارے عقیدے باطل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کر کے یہ پیغام بھی امت کو دیا. اچھا، اب نکاح تو ہو گیا 6 سال کی عمر میں، رخصتی 3 سال کے بعد ہوئی تھی، ہجرت کے بعد. نکاح ہجرت کے پہلے ہوا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ پہنچے تو ابھی فیملی، حضرت ابوبکر کی فیملی بھی اور اللہ کے رسول کی فیملی بھی ابھی مکہ میں ہے. تو جب وہاں جا کر کے کچھ سکون ملا، کچھ آرام ملا، تو حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت رافع کو اور حضرت زید ابن حارثہ کو بھیجا کہ جاؤ ہماری فیملی کو لے کر کے آؤ. تو حضرت زید اللہ کے رسول کی بیوی حضرت سودا کو، اور آپ کی بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ کو، اور اسی طریقے سے حضرت زید کی بیوی حضرت ام ایمن کو، اور زید کے بیٹے اسامہ کو، اتنے لوگوں کو لے کر کے آئے. اور حضرت عبداللہ اپنی ماں ام رومان کو اور اپنی بہنوں کو، حضرت عائشہ کو اور حضرت اسماء کو لے کر کے آئے. نکاح ہو چکا ہے حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول کی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے. تو یہ لوگ جب مدینہ پہنچے تو حضرت سودا کے لیے اور حضرت فاطمہ اور ام کلثوم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے بالکل سٹا ہوا 2 کمرہ بنوایا تھا. وہ لوگ وہیں پر شفٹ ہو گئی، اور حضرت ابوبکر کی فیملی الگ ایک مکان میں شفٹ ہو گئی. اس کے بعد جب حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی ہوئی، یعنی ہجرت کے تقریباً 2 برس کے بعد یا ہجرت کے 1 برس کے بعد رخصتی ہوئی. رخصتی کیسے ہوئی؟ بڑا دلچسپ واقعہ سنیے گا. صحیح بخاری کے اندر 3894 اور صحیح مسلم کے اندر 1422 نمبر کی حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی جبکہ میں 6 سال کی تھی. جب ہم لوگ مدینہ پہنچے تو ہم لوگ قبیلہ خزرج کے ایک خاندان بنو الحارث میں ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا. مدینہ پہنچنے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی اور میرے بال جھڑنے لگے.
फवफ्फा जुमैमतन, मेरे बाल इतने छोटे हो गए कि कंधे तक आ गए। जैसे हमारे यहाँ बाज लोगों के यहाँ वो लड़कियां जो बाल रखती हैं, जिसको हमारे यहाँ पट्टा बाल बोलते हैं, कंधे तक का बाल, हजरत आयशा का बाल झड़ करके इतना छोटा हो गया, कहती है फवफ्फा जुमैमतन, कंधे तक का मेरा बाल हो गया। फ़अततनी उम्मी उम्म रूमान, एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी, मेरी माँ उम्मे रूमान आई और मुझे बुलाने लगी। मुझे पता भी नहीं था वो क्या चाहती हैं, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और घर के दरवाजे पर ले जाके मुझे खड़ा कर दिया। मैं हाँफने लगी, मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी। फिर उसके बाद मेरी माँ ने मेरा चेहरा धुलवाया, मेरे बाल को धुलवाया, और उसके बाद मुझे घर के अंदर लेके गई तो वहां अंसार की कुछ औरतें बैठी हुई थी। तो उन लोगों ने मुझे देख करके कहा कि अलल खैर वल बरका, आओ ये शादी मुबारक हो, ये रुखसती मुबारक हो, वाला खैर ताहिर, तुम बड़ा अच्छा नसीब लेकर के आ रही हो। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे तैयार किया और मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दिन के वक्त पहुंचाई गई। दिन के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मेरी रुखसती हुई और उस वक्त मैं 9 बरस की, वाना यौमइज़िन 9 सिनीन, मैं 9 बरस की उम्र में हजरत आयशा की शादी हो गई। जाहिर 9 बरस की उम्र में ठीक है वो बालिग थी, शादी के काबिल थी, जवान थी, लेकिन लड़कपन तो था। वो लड़कपन शादी के बाद भी कायम था। शादी के बाद हजरत आयशा खेला करती थी गुड़ियों से, शादी के बाद भी उनके अंदर जाहिर है कि उम्र का एक तकाजा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर है कि दुनिया के सबसे अजीम इंसान थे। आपका जो मिशन था दुनिया का सबसे सीरियस और सबसे संजीदा मिशन था, मगर इतने सीरियस और इतने संजीदा मिशन पर होने के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के खिलवाड़ को, उनके यानी बचपन का जो शौक था, उस पर आपने पाबंदी नहीं लगाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी आयशा रदियल्लाहु अन्हा से कम उम्री में, सही या गलत? हम देखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ उठाए जाने वाले एतराजों में ये टॉप 5 एतराजों में से एक एतराज है, और बहुत सारे लोग ये सवाल जहन में रखते हैं और इस ताल्लुक से कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये रिसर्च जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप इसे गौर से सुने इंशाल्लाह। इसमें मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं। वो सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि जो लोग इसके बरखिलाफ व्यू रखते हैं वो इन सवालों का जवाब जानने में इस मौजू को और अच्छी तरह से समझ पाए इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं वो लोगों से जो कहते हैं कि ये गलत है। मैं उनसे कहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि मिनिमम उम्र शादी की क्या होनी चाहिए? यानी अगर आप ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हुई आयशा रदियल्लाहु अन्हा से और जो रुखसती हुई 9 साल की उम्र में, ये गलत था, तो सही क्या होना चाहिए, क्या आपको पता है? तो ये हो गया पहला सवाल कि क्या है सही। एक इसमें थॉट कायम करें तो आप इस वीडियो से ज्यादा इंशाल्लाह फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि आप जिस किसी उम्र को सही समझते हैं उसे सही कहने का आपका म्यार क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, और जिसे आप गलत कहते हो उसे गलत कहते हो तो किस म्यार से गलत कहते हो? मिसाल के तौर पर अगर 2 लोग मेजर कर रहे हैं और दोनों का मेजरमेंट मैच नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि पहले मेजर टेप में चेक कर लो कि भाई हो सकता है एक शख्स सेंटीमीटर्स में कह रहा है और दूसरा इंचेस में कह रहा है, तो पहले कैलिब्रेशन चेक करो, स्टैंडर्ड चेक करो, क्या स्टैंडर्ड है। तो आपका स्टैंडर्ड क्या है सही और गलत कहने में? ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है, हम आगे जब बढ़ेंगे तो आपको ये बात इंशाल्लाह और अच्छी तरह से समझ में आएगी। तीसरा सवाल कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कम उम्री में हुई, आप सिर्फ इसे गलत समझते हो या कम उम्री में किसी भी शादी को गलत समझते हो? अगर मान लो कि आप सिर्फ आयशा रदियल्लाहु अन्हा की शादी को गलत समझते हो तो ये तो नाइंसाफी है, ये तो नाइंसाफी है। आपको या तो सारी कम उम्री की शादियों को गलत समझना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक इंसाफ का व्यू कायम करेंगे। अगर आप गलत भी कहते हो तो आपको सारी कम उम्री की शादियों को गलत कहना चाहिए और फिर हम आगे बात कर सकते हैं। अब बात शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बताना चाहता हूं कि चाइल्ड मैरिजेस जो है ना, उसके तो हम भी खिलाफ हैं। क्या आपको पता है इस्लाम के अंदर शादी कब परमिसिबल है और मिनिमम एज शादी की क्या है इस्लाम में? आइए देखते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे सवालों के जवाब सिर्फ इस फॉर्मूला में है, तो आप ये फॉर्मूला को बहुत गौर से पढ़िए। सबसे पहले लड़की बुलूगत तक पहुंची हो। बुलूगत का मतलब प्यूबर्टी, यानी कि बालिग हो गई हो, यानी कि मैच्योर हो गई हो। उसके अंदर क्या कंडीशन है कि उसे हैज यानी मेंसेस आ गया हो। और इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं। प्रूफ्स में से एक प्रूफ आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कुरान की आयत सूरा नंबर 4 आयत नंबर 6, वब्तलुल यतामा हत्ता इदा बलगु निकाह, कि यतीमों को आजमाओ यहां तक कि वो निकाह की उम्र तक ना पहुंच जाए। तो पता चला कि वो निकाह की उम्र तक पहुंच जाएंगे तब उनकी प्रॉपर्टी उन्हें
लौटाई जाएगी फ़इनानस तुम मिनहुम। हुई 9 साल की उम्र में ये गलत था, तो सही क्या होना चाहिए, क्या आपको पता है? तो ये हो गया पहला सवाल कि क्या है सही, एक इसमें थॉट कायम करें तो आप इस वीडियो से ज्यादा इंशाल्लाह फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप जिस किसी उम्र को सही समझते हैं उसे सही कहने का आपका म्यार क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, और जिसे आप गलत कहते हो उसे गलत कहते हो तो किस म्यार से गलत कहते हो। मिसाल के तौर पर अगर 2 लोग मेजर कर रहे हैं और दोनों का मेजरमेंट मैच नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि पहले मेजर टेप में चेक कर लो कि भाई हो सकता है एक शख्स सेंटीमीटर्स में कह रहा है और दूसरा इंचेस में कह रहा है, तो पहले कैलिब्रेशन चेक करो, स्टैंडर्ड चेक करो, क्या स्टैंडर्ड है, तो आपका स्टैंडर्ड क्या है सही और गलत कहने में। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है, हम आगे जब बढ़ेंगे तो आपको ये बात इंशाल्लाह और अच्छी तरह से समझ में आएगी। तीसरा सवाल कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कम उम्री में हुई, आप सिर्फ इसे गलत समझते हो या कम उम्री में किसी भी शादी को गलत समझते हो? अगर मान लो कि आप सिर्फ आयशा रदियल्लाहु अन्हा की शादी को गलत समझते हो तो ये तो नाइंसाफी है, ये तो नाइंसाफी है। आपको या तो सारी कम उम्री की शादियों को गलत समझना चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक इंसाफ का व्यू कायम करेंगे। अगर आप गलत भी कहते हो तो आपको सारी कम उम्री की शादियों को गलत कहना चाहिए और फिर हम आगे बात कर सकते हैं। अब बात शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बताना चाहता हूं कि चाइल्ड मैरिजेस जो है ना उसके तो हम भी खिलाफ हैं। क्या आपको पता है इस्लाम के अंदर शादी कब परमिसिबल है और मिनिमम एज शादी की क्या है इस्लाम में? आइए देखते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे सवालों के जवाब सिर्फ इस फॉर्मूला में है, तो आप ये फॉर्मूला को बहुत गौर से पढ़िए। सबसे पहले लड़की बुलूगत तक पहुंची हो, बुलूगत का मतलब प्यूबर्टी, यानी कि बालिग हो गई हो, यानी कि मैच्योर हो गई हो, उसके अंदर क्या कंडीशन है कि उसे हैज यानी मेंसेस आ गया हो। और इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं। प्रूफ्स में से एक प्रूफ आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कुरान की आयत सूरह नंबर 4 आयत नंबर 6, वब्तलुल यतामा हत्ता इदा बलगु निकाह, कि यतीमों को आजमाओ यहां तक कि वो निकाह की उम्र तक ना पहुंच जाए। तो पता चला कि वो निकाह की उम्र तक पहुंच जाएंगे तब उनकी प्रॉपर्टी उन्हें लौटाई जाएगी। फ़इनानस तुम मिनहुम रुशदन फतफऊ इलैहिम अम्वालहुम, यानी उनका माल लौटाने से पहले जो चेक किया जाएगा कि कम से कम निकाह की उम्र तक पहुंच जाए। पता ही चला कि निकाह की एक उम्र है, और बल्कि लफ्ज बुलुगत बलगुन निकाह, ये बुलुगत भी इसी लफ्ज से आता है। तो हम देखते हैं कि निकाह की उम्र क्या है, वो है जब हैज आ जाए, मेंसेस आ जाए। ये हो गई पहली कंडीशन, और बुलुगत तक पहुंचना जरूरी है, ये हो गई पहली बात। लेकिन सिर्फ ये कंडीशन नहीं है, दूसरी कंडीशन ये है कि फिजिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर मान लो कि कोई लड़की है जो हैज तक तो पहुंच गई लेकिन फिजिकली कैपेबल नहीं है, मतलब जिस्मी तौर पर तैयार नहीं है, उसे नुकसान हो सकता है, उसे तकलीफ हो सकती है, तो याद रखिए सुनन इब्न माजा में एक हदीस है जो इस्लाम के कवायदुल फिक़हिया में हम देखते हैं, जो फिक़्ह के रूल्स है, जो जनरल रूल्स कैसे निकाले जाते हैं, बहुत सारे एविडेंसेस को जमा करके एक कायदा निकलता है। तो कवायदुल फिक़हिया में से एक कायदा है ला दररा वला दिरार, कोई नुकसान ना पहुंचाओ ना नुकसान लो। इसी वजह से हम देखते हैं कि स्कॉलर्स ने इस बारे में कहा है, जैसे मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं ये सही मुस्लिम की कमेंट्री जो इमाम नववी ने लिखी है, उसके अंदर ये चीज जिक्र है। काल अल मालिक, इमाम मालिक ने कहा, व शाफी, और शाफी ने कहा, व अबू हनीफा ने कहा, हद्दु ज़ालिका अन तुतिक़ल जिमा, वो कहते हैं कि इसकी लिमिट, मतलब कि रुखसती की जो लिमिट है वो तब है ततीक़ल जिमा, यानी कि वो लड़की के अंदर उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो जिस्मानी ताल्लुकात है, सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं, उसके अंदर ततीक़ल जिमा यानी उसके अंदर इस्तिताअत होनी चाहिए, यानी उसको नुकसान और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं वयख्तलिफु ज़ालिका बिइख्तिलाफ़िहिन्ना, इसमें तो लड़कियों के अंदर आपस में इख्तिलाफ होता है, मतलब फिजिकल कैपेबिलिटी किसी लड़की में हो सकता है जल्दी आएगी, किसी में लेट आएगी, इसी वजह से उसे नंबर से यानी एज के साथ फिक्स नहीं किया जा सकता है। वहादा हुआ सही, और यही सही बात है। मतलब क्या मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस्लाम ये सिखाता है कि वो लड़की नंबर 1 तो बालिग हो और नंबर 2 उसके अंदर फिजिकल कैपेबिलिटी हो। और एक तीसरी चीज है जो इसमें शामिल है, वो है साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर वो जहनी तौर पर तैयार नहीं है और साइकोलॉजिकल तौर पर तैयार नहीं है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, मैरिज के लिए, तो उसे तकलीफ और नुकसान होगी। तो ला दरर वला दिरार के अंदर ये भी शामिल है। जब ये 3 चीजें जाके मिलती है तो तब हमें मिलता है कि वो सूटेबल फॉर मैरिज हो गई, यानी मैरिज के लिए वो तैयार है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई लड़की बालिग भी है, फिजिकल तौर पर कैपेबल भी है, जहनी तौर पर भी कैपेबल है, तो आप उस लड़की को अडल्ट कहेंगे या बच्ची कहेंगे? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। हकीकत तो ये है इसे अडल्ट कहेंगे, वो अडल्ट हो चुकी है। और अडल्टहुड का फिक्स नंबर देना ये एक्चुअली एक मिस्टेक है, क्योंकि हम देखते हैं अडल्टहुड का जो नंबर है, टाइम, लोकेशन, प्लेस, कंट्री, जमाना, उसके अंदर ये चीज डिफर भी करती है। तो ये हो गया मेरा चौथा सवाल आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा ये सारे स्टेजेस को पार करके, ये जो स्टेजेस आपने देखा, ये सब स्टेजेस को पार करके 9 इयर्स की उम्र में वो तैयार थी, सूटेबल फॉर मैरिज थी।
अब कोई और लड़की के लिए हो सकता है ये 9 इयर्स में होगा, हो सकता है 12 साल में होगा, हो सकता है 15 और हो सकता है 18 में भी ना हो। तो हम ये देखते हैं कि ये सारी कंडीशंस के साथ एक और बात बहुत जरूरी है और वो है लड़की की कंसेंट यानी कि रजामंदी। क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तुनकाहुल बिक्रू हत्ता तुस्ताज़नु, कि जो बाकिरा है, जो वर्जिन है, उससे निकाह नहीं किया जाएगा यहां तक कि उसकी इजाजत ना ले ली जाए। कालू कैफा इज़्नुहा काला अन तस्कुता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वो जो बाकिरा है, जो वर्जिन है, उससे इजाजत कैसे ली जाएगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसकी खामोशी भी उसकी रजा है, यानी उससे पूछा जाएगा, अगर वो साइलेंट है उस वक्त पर तो वो साइलेंस उसकी हया की वजह से अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि ये उसकी रजामंदी है, उसका कंसेंट है। हम आगे बढ़ते हैं। एक और दलील, एक बार ऐसा हुआ कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक वालिद और एक उनकी बेटी का केस आया। बेटी कह रही थी मुझे शादी नहीं करना है, वालिद चाहते थे कि उसकी शादी कर दी जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बच्ची ने कहा, लड़की ने कहा वल्लज़ी बाअसका बिल हक़, उस जात की कसम जिस जात ने आपको हक के साथ भेजा है, ला तज़व्वजू अबदा, मैं कभी शादी नहीं करना चाहती हूं। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब क्या कहा आपको पता है? ला तनकिहुन्ना इल्ला बिइज़्निहिन्ना, उनकी शादियां मत कराओ सिवाय उनकी इजाजत के साथ। मतलब वो लड़की की इजाजत होगी तब जाके उसकी फादर उसकी शादी करा सकते हैं, फोर्स करके उसकी शादी करा नहीं सकते। अगर होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां उस फादर को इजाजत देते थे कि नहीं तुम करा दो अपनी बेटी की शादी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर मना करके कहा, प्रोहिबिशन के साथ कहा ला तनकिहुन्ना इल्ला बिइज़्निहिन्ना। एक तीसरी दलील भी हम देख लेते हैं कि खंसा बिन्त खिजाम अल अंसारिया रदियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उन्होंने आकर के शिकायत किया कि मेरी शादी बगैर मेरी इजाजत के कर दी गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? फर्रद्दा निकाहहू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके निकाह को ही कैंसिल कर दिया। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये बात सीखते हैं कि अगर कोई लड़की की इजाजत नहीं ली गई तो फिर तलाक में काउंट नहीं होगा, उसका निकाह कैंसिल हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या जब वो नाबालिग है तब उसकी इजाजत ली जा सकती है? हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी सही बुखारी की कमेंट्री में लिखते हैं ला माना लिस्तिज़ानिन मन ला तदरी मल इज़्न, कि इजाजत का मतलब ही नहीं है अगर उसे पता नहीं है कि इजाजत कहते किसे हैं। तो वो छोटी बच्ची से नहीं पूछा जाएगा, बालिग होने के बाद, समझदार होने के बाद, जब वो समझ सकती है कि वो क्या चीज की इजाजत दे रही है, तब जाकर उसकी इजाजत ली जा सकती है। यह है शरीयत का कायदा। अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हम किस जमाने की बात कर रहे हैं? हम 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स कब मिले हैं? लास्ट 100 साल में मिले हैं। क्या आप जानते हैं लास्ट 200 साल पहले तो सती बैन हुई थी? हम 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 1400 साल पहले औरतों को यह इजाजत दी गई कि वो मना भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में अगली चीज हम ये देखते हैं कि वली की कंसेंट, यानी कि जो लड़की के वली है, जो वालिद होते हैं, जो जिम्मेदार है, उनकी कंसेंट होना भी जरूरी है और तब जाकर मैरिज अलाउ होगी। मेरा सवाल है, इस्लाम का ये जो कंसेप्ट आपके सामने है, इस कंसेप्ट पर आपका क्या एतराज है? अब आइए हम ये देखते हैं कि औरतों में हैज, मेंसेस आता कब है। देख सकते हैं इसके अंदर दिया है स्टडी फाइंड्स अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स, लड़कियों में कब प्यूबर्टी आती है, कब मेंसेस आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस उम्र में मेंसेस आते हैं और जो उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी यहां पे दिया हुआ है। तो वो कब उस लड़की में आते हैं, 7 साल में कितने %, 8 में कितने, 9, 10, 11, ये आज की बात है, ये आज की रिपोर्ट है। और इसके अंदर इंडिया की बात अगर देखें तो इंडिया में भी देखा गया बाज रिपोर्ट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मिनार्की, यानी कि जो मेंसेस की शुरुआत 8-9 साल में, और ये रिपोर्ट में आप देख सकते हैं पीरियड्स एट 7 साल में जो पीरियड्स आ रहे हैं जिसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 7 साल में केसेस इंडिया में भी मिल रहे हैं। और इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि 20 फैक्टर्स हैं जो यहां पे दिए हुए हैं जिनके ऊपर मेनार्कल एज डिपेंड होती है, यानी मेंसेस की शुरुआत डिपेंड होती है। 20 फैक्टर्स है, यानी ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सेम टाइम पर, सब जगह पर लड़कियों को सेम टाइम पर मेंसेस आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। जेनेटिक फैक्टर्स है, रेस के ऊपर डिपेंड होता है, एनवायरमेंट की जो कंडीशंस है उसके ऊपर डिपेंड होता है, जो खाते पीते न्यूट्रिशन है उस पर डिपेंड होता है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है उस पर डिपेंड होता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड होता है, अर्बन रूरल रेजिडेंस में फर्क पड़ता है, हेल्थ स्टेटस क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, ब्लाइंडनेस में कभी फर्क पड़ता है, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स क्या है, फैमिली साइज क्या है, ये कई सारे फैक्टर्स के ऊपर ये चीज डिपेंड होती है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि एक ही जमाने में अगर बात करें, अगर हम 2022 की बात करें तो इंडिया में कब हो रहा है, अफ्रीका में कब हो रहा है, अमेरिका में कब हो रहा है, इसमें कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होकर मेंसेस की एज चेंज होती है। और आप अगर जमाने में देखें तो और फैक्टर्स उसके अंदर आ जाते हैं, जो फैक्टर्स को देखकर हम ये बात समझ सकते हैं कि मेंसेस की एज डिफर होती है। आप इस हदीस से देखिए जो सही सनद से मिलती है, इमाम शाफी रहिमहुल्लाह का कौल है, वो कहते हैं ताहमिलुल मरअतु बिल यमनी लिबिंती 90 कि यमन के अंदर तो औरतों को 9 और 10 साल की उम्र तक वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये कहां से हमें पता चल रहा है?
इस हदीस से पता चल रहा है जो ऑथेंटिक चेन ऑफ नरेशन से मिलती है। जिस तरह से आयशा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में हमें ऑथेंटिक चेन ऑफ नरेशन से पता चलता है कि उनकी उम्र 9 साल थी रुखसती के वक्त पर, हमें उसी तरह यहां यह पता चलता है कि उस जमाने का एक नॉर्मल कॉमन चलन था कि औरतें उस जमाने में उस वक्त तक तो प्रेग्नेंट हो जाती थी। तो मेरा सवाल यह है, जो लोग आज ये दावा करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं कि प्यूबर्टी हैज नहीं आता है, तो क्लियर प्रूफ दो कि किसी को भी दुनिया में प्यूबर्टी नहीं आता है कम उम्र में, तो हम आगे इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर नहीं तो कम से कम ये रिसर्च को आप एक्सेप्ट करो। कुछ क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम एक सवाल पूछते हैं कि जब आयशा रदियल्लाहु अन्हा की रुखसती हुई, वो ये इल्जाम लगाते हैं कि उस वक्त पर वो बालिग यानी कि हैज नहीं आया था, मेंसेस नहीं आया था उन्हें। सेकंड इल्जाम ये लगाते हैं कि उनसे इजाजत नहीं ली गई। एक मिसाल के जरिए मैं इस सवाल का जवाब देकर उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मिसाल यह है कि सपोज करिए मेरे घर में खाना बना है, चिकन बना है, तो अंडरस्टूड बात है कि वो हलाल ज़बा की हुई चिकन है। अगर आप ये इल्जाम लगाते हैं कि नहीं वो ज़बा की हुई चिकन नहीं है, तो आपको दलील आनी पड़ेगी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। अंडरस्टूड बात है, आप एक मेरे यहां पर आ रहे हो, एक मुस्लिम के पास आ रहे हो, तो आपको हलाल चिकन ही मिलेगी इंशाल्लाह। अब मेरी मिसाल तो कुछ नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने हाई लेवल के थे, उन्होंने जो उसूल सिखाए उसके मुताबिक उन्होंने जिंदगी गुजारी। अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा की जब रुखसती हुई उस वक्त पर उन्हें हैज नहीं आया था, तो कहां से आपको ये बात पता चली। प्रूफ लाओ, कोई एक सही हदीस लाओ, ताकि ये बात जो आप कह रहे हो इसका प्रूफ मिले। कोई एक वाज़ेह क्लियर हदीस होनी चाहिए कि उनसे इजाजत नहीं ली गई, वो हैज की उम्र तक नहीं पहुंची थी। तो ये एक सवाल है उनके लिए, मेरा अगला सवाल है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 2 दलीलें देना चाहता हूं। सही बुखारी की हदीस आपके सामने स्क्रीन पर है। आयशा रदियल्लाहु अन्हा बताती हैं, फैज़ा निस्वतु मिनल अंसार फिल बैत, अंसार की औरतें घर में जमा हुई थी। फकुलना अलल खैरि व बरकाह, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए खैर हो, बरकतें हो, वाला खैरी तौरिन, बेहतरीन नसीब हो, यानी वो दुआएं दे रही थी, मुबारकबाद दे रही थी। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या कोई लड़की नहीं समझी हो कि क्या बात की मुबारकबादी दे रही हो। क्या वो ये नहीं कहेंगे कि आप सब यहां पे जमा क्यों हुई हो। फिर आगे पढ़िए, फासलमतनी इलैहिन्ना फस्लहना मिन शानी, कि फिर मुझे उनके हवाले कर दिया गया, उन्होंने मुझे मुझे सवारा। और हदीसों में डिटेल्स आती है कि उन्हें तैयार किया रुखसती के लिए। तो जाहिर सी बात है यहां तो कंसेंट इसमें शामिल है। मैं दूसरी हदीस आपको ये बताना चाहता हूं जिसके अंदर आता है कि जब आयशा रदियल्लाहु अन्हा की रुखसती के वक्त से पहले की बात थी, उनकी वालिदा चाहती थी कि वो थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लें, थोड़ा सा वजन उनका बढ़ जाए, तो वो अलग अलग तरह के खाने उन्हें खिलाती थी। यहां तक कि एक पर्टिकुलर टाइप का खाना उन्हें खिलाया गया, तो फसमिनतु अलैहि फअहसन समनी, तो वो कहती है कि वो अच्छी तरह से फिर वो थोड़ी मोटी हुई, यानी फिजिकल तौर पर भी डेवलप हुई, फिजिकल तौर पर भी रेडी थी। तो यहां पे हमें ये बात भी पता चलती है कि खास शादी की तैयारी हो रही थी, खास शादी के लिए तैयार किया जा रहा था, और वो बता रही थी और कॉन्शियसली एक तरह की कोशिश हो रही थी, यानी निकाह के बाद से लेकर रुखसती के दरमियान में। तो ये कहना कि उनको नहीं पता था, उनकी इजाजत नहीं थी, ये सवाल ही नहीं होता। और अगर कोई ये इल्जाम लगाता है तो उसे वाज़ेह क्लियर हदीस लाना चाहिए, या तो इस इल्जाम को ड्रॉप कर देना चाहिए। आइए अब हम अहम सवाल पे आते हैं, क्या है एज ऑफ मैरिज। एज ऑफ मैरिज अगर आप इंडिया में देखो तो करंटली 18 साल है औरतों के लिए, और इसी वजह से आमतौर पे जब ये सवाल लोगों से पूछा जाता है तो अक्सर लोग ये कहते हैं 18 साल होनी चाहिए एज ऑफ मैरिज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में अंडर रिव्यू है। अगर यह बिल पास हो गया तो एज ऑफ मैरिज 18 से हो जाएगी 21। यानी थोड़े दिन पहले आप ये कहते रहेंगे कि 18 साल होनी चाहिए थी मिनिमम एज ऑफ मैरिज, और फिर आपको कहना होगा नहीं 21 साल होनी चाहिए। आइए इस चीज को इवैल्यूएट करते हैं। क्या आप जानते हैं क्या है एज ऑफ कंसेंट और क्या है एज ऑफ मैरिज। एज ऑफ कंसेंट क्या होता है, अगर आप डिक्शनरी में देखें, ये वो एज है जिसमें एक लड़का या लड़की कंसेंट दे सकते हैं, अपनी रजामंदी दे सकते हैं सेक्सुअल ताल्लुकात के लिए। शादी की बात नहीं है, शादी की इजाजत बाद में, अक्सर कंट्रीज में ऐसा है। तो एज ऑफ कंसेंट अक्सर कंट्रीज में अलग है। मिसाल के तौर पर चाइना में एज ऑफ कंसेंट 14 साल है, यानी 14 साल में एक लड़का या लड़की रजामंदी दे सकती है कि मैं सेक्सुअल रिलेशंस करूंगी किसी के साथ या करूंगा किसी के साथ। लेकिन एज ऑफ मैरिज 20 साल है लड़कियों के लिए और 22 साल है लड़कों के लिए। तो मेरा एक सवाल है, सवाल यह है कि जो लोग उंगली उठाते हैं एज ऑफ मैरिज पर, तो क्या उन्हें एज ऑफ कंसेंट पे भी उंगली नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि बेसिकली एज ऑफ कंसेंट जब बताई जा रही है तो यह कहा जा रहा है यानी कि वो लड़का और लड़की तैयार है ताल्लुकात के लिए। इस्लाम में ऐसी 2 अलग अलग उम्र नहीं है एज ऑफ कंसेंट जिसके अंदर कोई अडल्ट्री या फॉर्निकेशन जिना कर सकता है, और एज ऑफ मैरिज एक ही उम्र है। यानी कि सिर्फ सही रास्ता है, गलत रास्ता नहीं है, इमोरल रास्ता नहीं है, सही मॉरल रास्ता है विद लॉयल्टी। तो मैं आप सबको यह सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आप एज ऑफ मैरिज पे कहते हैं ये एज ऑफ मैरिज है, तो क्या आपको एज ऑफ कंसेंट पे भी उंगली नहीं उठाना चाहिए? क्या ये इंसाफ की बात होगी नहीं होगी? अब आइए अगले पॉइंट पे देखते हैं। क्या आपको पता है एज ऑफ कंसेंट दुनिया में क्या है? आप इस वेबसाइट में जाइए ageofconsent.net, इसमें पूरी दुनिया की कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है,
और वहां पे एज ऑफ कंसेंट क्या है, और अगर आप कंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स भी मिल जाएगी। आप वहां पे देख सकते हैं कि 12 साल है कोई कंट्रीज में। मिसाल के तौर पे फिलीपींस में 2022 के मार्च तक भी 12 साल था, अभी 13 और 16 साल है। अंगोला में तो अभी भी 12 साल है। जापान में और दूसरी कंट्रीज में 13 साल। अब हम ये कहें कि नहीं, हम जापान से ज्यादा समझते हैं, तो एक सवाल उठता है। चाइना में 14 साल, और चाइना के अलावा 32 कंट्रीज है जहां 14 साल है। फ्रांस में 15 साल है, और फ्रांस के साथ में टोटल 25 कंट्रीज है जहां पे 15 साल की एज ऑफ कंसेंट है। यूएसए में 16 साल है, और यूएसए के अलावा टोटल मिलाकर 78 कंट्रीज है जहां पे 16 साल की एज ऑफ कंसेंट है। तो हम ये देखते हैं कि ये एज ऑफ कंसेंट डिफर होती है। यानी कि आप एक जगह पर हो, एक कंट्री में हो, आपने एक बाउंड्री पार की, और बाउंड्री पार करके आप दूसरी कंट्री में पहुंच गए, तो एज ऑफ कंसेंट चेंज हो गई। जो चीज यहां लीगल थी वहां इलीगल है। तो पता ही चलता है कि ये एज ऑफ कंसेंट, और ये जो एज जो लोग बताते हैं कि नहीं यही होना चाहिए, तो आपको ये समझ में आ रहा है। जापान वालों को 13 साल समझ में आ रहा है, चाइना को 14 ईयर समझ में आ रहा है, यूएसए को 16 साल समझ में आ रहा है। तो यहां पे ये चीज डिफर होती है। इस्लाम ने कोई उम्र नहीं दिया। इस्लाम ने एक सिस्टम बताया, हैज फिजिकली रेडी, मेंटली रेडी, यानी कि टोटली रेडी फॉर मैरिज। फिर उसके बाद लड़की कंसेंट दे, वली की कंसेंट दे, तब जाके मैरिज होगी। तो मतलब हम ये देखते हैं कि ये एक फॉर्मूला है जो इस्लाम ने दिया, जो ये सारी बाउंड्रीज से ऊपर है। मान लो मिसाल के तौर पे कोई कंट्री में लड़कियां जल्दी मैच्योर नहीं हो रही है, वहां पे हैज जल्दी नहीं आ रहा है, एज बढ़ गई। कहीं पे लोग मेंटली लड़कियां रेडी नहीं है, फिजिकल तौर पे बहुत कमजोर है, वहां पे एज बढ़ गई। तो मैं यहां पे कोई 9 इयर्स का फॉर्मूला डिफेंड करने नहीं आया हूं। मैं यहां ये कहने आया हूं कि इस्लाम का जो बताया हुआ फॉर्मूला है, जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा परफेक्टली क्वालिफाइड थी अपने जमाने दौर में उस जगह पर, सिर्फ वही नहीं दूसरी कई लड़कियों का भी ये मामला है। और हम ये देखते हैं कि आज जगह से जगह देखेंगे तो ये रूल चेंज होगा। मेरा अगला पॉइंट, आप ये रिपोर्ट देखिए। 1991 में अमेरिका में हर 1 लाख लड़कियों में से 140 लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही थी। कौन सी उम्र की? 10 से 14 साल। हम कितने साल की बात कर रहे हैं? 10 साल से 14 साल के दरमियान की जो लड़कियां हैं, 140 लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही थी हर 1 लाख में से। और 2020 में आए तो ये 1 लाख में से 20 लड़कियां प्रेग्नेंट होने लगी। क्यों? इसलिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत आसानी से अवेलेबल होने लगे। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं कि किस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज पाया जाता है 10 to 14 ईयर्स के गैप में। ये यूएसए की बात है। ताज्जुब की बात यह है कि अमेरिका में तो अभी हमने देखा कि एज ऑफ कंसेंट 16 साल है। तो 10 से 14 साल को कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल करके, ताकि उनके अंदर जो प्रेगनेंसीज हो रही थी वो थोड़ा नंबर कम हो जाए, ये अवेलेबल करना क्या साबित कर रहा है? मतलब एक कायदा है 16 साल, लेकिन जमीनी सतह पर कोई और चीज फॉलो हो रही है। एक आजादी है कि 10 से 14 साल भी कर रहे हो, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके करो। तो पता ही चला ये हो रहा है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं यहां पे। आप ये देखिए, ये है 2 STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का चार्ट। हर 1 लाख बच्चों में ये पाया जा रहा है, और ये 10 से 14 साल का चार्ट है, 10 to 14 ईयर्स। और ये रिपोर्ट देखिए, इसमें तो वाज़े तौर पर ये लोअर इनकम ग्रुप के बच्चों की बात हो रही है, लोअर इनकम वालों की, लेकिन उनके अंदर एवरेज एज 12 साल पाई गई। फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकॉर्स, यानी फर्स्ट टाइम जो सेक्सुअल रिलेशंस वो करते हैं, 12 साल की उम्र। और आप ये रिपोर्ट पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है, जो दिख रहा है आपको, बाज बच्चे 8 और 9 साल के अंदर सेक्सुअल रिलेशंस करते हैं। क्या आपको पता है ये क्या हो रहा है? STD मिल रहा है, प्रेगनेंसी मिल रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज मिल रहा है। वाज़े रिपोर्ट मिल रही है कि 8-9 साल में भी हो रहा है, 12 साल एवरेज एज है, औसत एवरेज। क्या साबित कर रहे हैं मालूम है? वो ये बात तो पक्की है, वो अपनी जिंदगियों को खराब कर रहे हैं। लेकिन वो उन थ्योरीज की धज्जियां उड़ा रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये बच्चे जो है ना 18 साल के हो जाए ना, तब जाके वो फिजिकल ताल्लुकात की कैपेबिलिटी उनमें आती है, तब जाके वो फिजिकली कैपेबल होते हैं। 18 साल तक होना जरूरी है। तो ये लोग प्रैक्टिकल तौर पर धज्जियां उड़ा रहे हैं थ्योरी की। क्या उड़ा रहे हैं? कि नहीं वो लोग रेडी हैं। क्यों? आपको क्या लगता है प्रेग्नेंट ऐसे ही हो रहे हैं और ये सब ऐसे ही हो रहा है और वो थ्योरी को फॉलो किया जा रहा है जमीनी सतह पर? तो नहीं, आपको सोचना चाहिए चीज के ताल्लुक से। ये रियलिटी है फेस टू फेस। ये रिपोर्ट जो अभी तक आप देख रहे थे, ये तो करंट जमाने की रिपोर्ट है। चलिए थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाते हैं। नहीं 1400 साल नहीं, हम सिर्फ 140 साल पीछे जा रहे हैं, 140 ईयर्स। ये 1880 की रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका के अक्सर स्टेट्स में 10 साल और 12 साल एज ऑफ कंसेंट थी। रशिया में 10 साल थी, पोर्चुगल में 12 साल थी, स्पेन में 12 साल थी, डेनमार्क में 12 साल थी। तो आप ये देख सकते हैं कि 10-12 साल ये नॉर्मल स्टैंडर्ड था, सिर्फ 140 साल पहले, 140 ईयर्स। अगर आप 1400 साल पहले जाएंगे तो आप और देख सकते हैं कि अर्ली मैरिज कॉमन बात थी। और इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में आप देख सकते हैं कि अभी जो 18 साल है, इससे पहले 16 साल थी, उससे पहले 14 साल थी, उससे पहले 12 साल थी, और 1860 में देखेंगे तो 10 साल थी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये पुराने जमाने के सब लोग गलत, ये सब गलत। आपकी दादी नानी को भी आप देखोगे या परदादी परनानी को देखोगे तो आप देखोगे कम उम्र में उनकी शादी हुई है, यानी वो जमाने में कॉमन बात थी। तो वो सब पुराने जमाने के सब दुनिया भर के लोग गलत,
और हम लोग सही, वो सब चाइल्ड अब्यूजर्स, वो सब रेपिस्ट और हम लोग सही। क्या आपको लग रहा है ये सही है? अच्छा, अब आगे सोचो, 10 से 12 साल हुई एज ऑफ मैरिज, 12 से 14, 16, 18, 20, अभी 21 हो रहा है। अब सोचो जमाना और आगे बढ़ता है तो आपको पता है एक पूरी लॉबी है, काम कर रही है कि एज ऑफ मैरिज और आगे बढ़ाना चाहिए। आप ये गैलप की सर्वे देख सकते हैं और इस तरह की और भी रिपोर्ट्स है। ये पोल में क्या हुआ, लोगों ने ये वोट किया कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज औरतों के लिए 25 साल होनी चाहिए और मर्दों के लिए 27 साल होनी चाहिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज। और ये लॉबी काम कर रही है, तो कोई बहुत दूर की बात नहीं है कि जिस तरह से एज ऑफ मैरिज 10, 12, 14, 16, 18, 21 तक आ गई, तो बहुत जल्द हो सकता है 25 तक पहुंचेगी, 27 तक पहुंचेगी, 30 ईयर्स तक पहुंचेगी। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि वो जमाने के लोग अगर पीछे मुड़कर देखेंगे और ये कहेंगे 2022 के लोग, ये लोग कैसे चाइल्ड अब्यूजर्स थे, 18 साल में मैरिज को सही समझते थे, तो आप वो लोगों को क्या कहोगे? क्या आप उन लोगों को ये कहने दोगे कि हाँ हम लोग आउटडेटेड थे, हम लोग जालिम थे, हम लोग बिल्कुल अब्यूज करते थे, चाइल्ड अब्यूज? क्या आप ये बात को मानेंगे? क्या आप उन्हें हक देंगे? तो नहीं, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है और हमें वहां का कंटेक्स्ट समझना चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि हिस्ट्री में ये एज ऑफ मैरिज क्यों इतनी कम हुआ करती थी। चलिए थोड़ा उनकी बात समझने की कोशिश करते हैं। आप ये चार्ट देखिए, ये करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में कि आप इंडिया में देख सकते हैं करंटली 69.66 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एवरेज इंडियन तकरीबन 69 साल जीता है, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन एवरेज 69.66 है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा से है? तो नहीं। आप थोड़ा पीछे देखेंगे, आप ये लाइन देख सकते हैं, 1960 में जाते हैं तो एवरेज एज एक एवरेज इंडियन की 42 ईयर्स के करीब हुआ करती थी। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आप ये सऊदी के बारे में देखिए, अभी वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स है, लेकिन 1960 में तकरीबन 42-43 ईयर्स थी। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो 1770 की बात है, 1770, 5 कॉन्टिनेंट्स की रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 to 80 ईयर्स है, वो 1770 में तकरीबन 28 से 35 साल के दरमियान थी एवरेज लाइफ। और ये रिपोर्ट देखिए, तकरीबन 2000 अलग अलग स्केलेटन्स मिले हैं। वो स्केलेटन्स को स्टडी किया जो एंशिएंट रोमन एम्पायर के बारे में है, और रोमन एम्पायर आप देख रहे हैं कंटिन्यू होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक भी था। तो आप देख रहे हैं ये स्केलेटन्स को देखने के बाद उन्हें पता चला कि एक एवरेज एंशिएंट रोमन वर्कर 30 साल की उम्र तक उसकी मौत हो जाती थी, एवरेज की, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन एवरेज 30। तो ये सब चीज देखने के बाद एक बात क्लिक हो रही है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी? कम थी। अगर आप एक और फैक्टर देखो कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, आज यूनिसेफ की रिपोर्ट देख सकते हो, हर 1000 बच्चों में से 46 बच्चे प्यूबर्टी से पहले यानी बालिग होने से पहले उनका इंतकाल हो जाता है, 1000 में से 46। लेकिन अगर आप ये रिपोर्ट देखोगे तो पुरानी सिविलाइजेशंस में 43 अलग अलग सिविलाइजेशंस का जायजा लिया गया और देखा गया 43 अलग अलग सिविलाइजेशंस थी, लेकिन एक चीज उनमें कॉमन थी, उनके अंदर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा था कि 46.2%। अभी 46,000 में से है, उस जमाने में 100 में से 46 का इंतकाल हो जाता था, यानी बच्चों में से 46 के करीब बच्चे बालिग होने से पहले ही मर जाते थे। यानी अगर आप उस जमाने में रहते हो और अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो 2 में से 1 तकरीबन उसका इंतकाल हो जाएगा बालिग होने से पहले, और एन एवरेज उसका इंतकाल हो जाएगा। और ये होता था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा सोचो, आप उस जमाने में रहते हो और आपको पता है कि तकरीबन 35 साल आपकी एवरेज उम्र है, कभी ज्यादा भी जी सकते हैं कभी कम भी, लेकिन एवरेज 35 है। कोई ज्यादा भी जी लेगा 60-70 तक, लेकिन कोई कम भी जिएगा। और आपको यह भी पता है कि चाइल्ड में बच्चों का इंतकाल हो जाता है और 100 बच्चे हैं तो 46 का इंतकाल हो जाता है बालिग होने से पहले। तो मुझे आप ये बताओ कि कब स्टार्ट करोगे, कब शादी करोगे आप? यानी तकरीबन 35 साल में इंतकाल हो रहा है तो क्या 30 साल में शादी करोगे? 25 साल में शादी करोगे? और अगर आप इतना लेट शादी करोगे तो एक बात समझ लीजिए कि आपके बच्चे बालिग होने से पहले ही बहुत हाई चांस है वो यतीम हो जाएंगे। एक और फैक्टर सोचिए कि वो जमाने में बच्चे सोसाइटी में रहते थे, इस वजह से वो एक्सपोज होते थे, इस वजह से वो जल्दी मैच्योर हो जाते थे मेंटल तौर पर। हमारे बच्चे आज हम देखते हैं कि स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर जब एक एजुकेशनल सिस्टम में लॉक्ड रहते हैं और सोसाइटी में एक्सपोज नहीं होते तो वो लोग इतनी जल्दी मैच्योर नहीं होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, लेकिन ये भी फैक्टर देखना चाहिए। तो ये एक सवाल है और मेरा सवाल ये है वो सारे लोगों से कि व्हाट डू यू थिंक 1400 साल पहले क्या होनी चाहिए थी मिनिमम एज ऑफ मैरिज? आप बताओ कि वो जो लोग जिनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 35 साल थी, उनकी एज ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए थी? कौन बेहतर समझ सकता है, वो लोग या आप? और आपको क्यों लगता है कि वो लोग गलत थे और आप यहां बैठकर 2022 में बैठकर आप पीछे मुड़कर कहोगे कि नहीं, उनकी एज ऑफ मैरिज इतनी होनी चाहिए थी, दिस शुड हैव बीन द एज ऑफ मैरिज? तो नहीं, मैं कहता हूं आप फैसला करने वाले कौन हो कि उनकी शादी कब होनी चाहिए थी? वो लोग बेहतर फैसला कर सकते थे अपने हालात को समझते हुए, अपनी सिचुएशन को समझते हुए। और इसी वजह से आप देखोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन भी थे, जो इस इंतजार में रहते थे कि कहां कोई चीज मिल जाए जिस पे वो एतराज उठाए, कोई ऑब्जेक्शन उठाए, उन्होंने कई एतराज उठाए, जो जिक्र है कुरान में उनके जवाब भी है,
लेकिन ये एतराज किसी ने नहीं उठाया कि वो उन्होंने 54 इयर्स के अंदर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जब रुखसती हुई उनकी 9 इयर्स थी, ये एतराज किसी ने नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी में कॉमन था। सिर्फ उस सोसाइटी में नहीं, उसके बाद भी कॉमन था। हम 140 साल पहले तक देख चुके हैं, हम तो 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे वो जमाने की जो दूसरी सिविलाइजेशन थी, जैसे रोमन्स थे या जैसे दूसरे लोग थे, उनके राइटिंग्स मौजूद है, उनमें से किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि उनमें भी ये चीज प्रैक्टिस होती थी। सवाल यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन भी थे उन्होंने दूसरे एतराज उठाए, लेकिन ये एतराज कभी किसी ने नहीं उठाया। ऐसा क्यों? अब आइए दूसरे मजहबों की तरफ आते हैं। आप देख सकते हैं कि हिंदुइज्म के 3 जो बड़ी पर्सनैलिटीज है, जैसे राम, कृष्ण और शिव, तीनों के ताल्लुक से आप रेफरेंसेस के साथ देख सकते हैं। ये रिपोर्ट मिलती है, जैसे राम जी के ताल्लुक से आता है कि 6 इयर्स की उम्र में उन्होंने सीता से शादी की। कृष्णा के ताल्लुक से आता है कि उन्होंने रुक्मिणी से 8 साल की उम्र में शादी की। और शिव के ताल्लुक से आता है उन्होंने पार्वती से 8 साल की उम्र में शादी की। और सबके रेफरेंसेस मौजूद हैं हिंदू किताबों से, आप देख सकते हैं। महाभारत का ये कोटेशन देखिए कि एक आदमी जो 30 साल का है उसे 10 साल की लड़की से शादी करना चाहिए, और एक आदमी जो 21 साल का है उसे 7 साल की लड़की से शादी करना चाहिए। यही सेम बात लॉज ऑफ मनुस्मृति के अंदर भी आप देख सकते हैं। और ये चीज के ताल्लुक से आर्टिकल्स मौजूद है जिसमें मोर देन 50 अलग अलग रेफरेंसेस हैं। ये तो मैंने चंद रेफरेंसेस बताया सिर्फ एक बताने के लिए, और यहां पे मैं किसी रिलीजन को अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हिस्टोरिकल तौर पे बता रहा हूं कि रिलीजन्स ये बात मानते आए हैं। इंडिया के ताल्लुक से आप देख सकते हो कि 2016 से पहले के 10 सालों में 1 करोड़ 20 लाख शादियां हुई बच्चों की बिलो 10 इयर्स, और उसमें से 84% हिंदू और 11% मुस्लिम। तो आप ये देखते हैं कि ये बात मानी जाती है, मास्टर्स में ये चीज फॉलो होती है, और ये चीज मौजूद है इंटरनेशनल तौर पर। आप अमेरिका की मिसाल देखिए। अमेरिका की मिसाल में आप ये देखोगे कि चाइल्ड मैरिज को बैन करने में जो इवेंजलिस्ट है, जो क्रिश्चियन प्रीचर्स है, जो मिशनरीज है, वो लोगों का प्रेशर है अमेरिकन गवर्नमेंट पे कि चाइल्ड मैरिज को बैन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका की रिपोर्ट देखिए कि तकरीबन पिछले 15 सालों में 2 लाख बच्चों की शादियां हुई। 2 लाख बच्चों की शादियां हुई अमेरिका में, क्योंकि कुछ स्टेट्स के लॉज के अंदर ऐसे कुछ प्रोविजन है कि जज की इजाजत से, पेरेंटल कंसेंट से कम उम्र में, यहां तक कि आप देख सकते हो कि 10 साल में भी शादी हुई। अभी के जमाने की बात कर रहे हैं हम, पुराने जमाने की नहीं बात कर रहे हैं। 10 साल की लड़की की भी हुई, 11 साल के लड़के की भी हुई, और कई सारे ऐसे माइनर्स की शादी हुई। अमेरिका की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि बताते टाइम पे मैं भी बच्चे बच्चे बोल रहा हूं, लेकिन हकीकत में उनमें से कितने रियली बच्चे हैं नहीं है, ये बात सोचनी चाहिए। देखो, अगर कोई रियली माइनर है ना, तो हम भी उस चीज को अपोज करते हैं। छोटा बच्चा है या बच्ची है जिसको मेंसेस भी नहीं आए हैं, फिजिकली रेडी नहीं है, मेंटली रेडी नहीं है, उसकी शादी की जा रही, गलत है ये बात, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन अगर मान लो वो फिजिकली रेडी है, उसको मेंसेस आ चुके हैं, मेंटली रेडी है, और अगर आप कहो कि नहीं तुम 18 साल नहीं हुए ना, तुम बच्चे हो, अब इमेजिन करिए प्रेग्नेंट होकर आ रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो रही है, लेकिन नहीं तुम बच्चे हो, तो ये बात क्या आपको समझ में आ रही है? जब इंटरनेशनल तौर पर ऐसी कोई उम्र कैद नहीं है, अलग अलग उम्रें मिलती है, तो हमें भी सोचना चाहिए। चलिए आइए क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स के ताल्लुक से देखते हैं। तो न्यू एडवेंट जो एनसाइक्लोपीडिया है उसमें आप ये देख सकते हैं, और यही सेम चीज जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द बाइबल है उसके अंदर भी दिया हुआ है कि मैरी के ताल्लुक से उनकी जब शादी हुई तो वो 12 साल की थी, और जोसेफ द कारपेंटर के साथ हुई जिनकी उम्र तकरीबन 90 साल की थी। ऑफ कोर्स इस्लामिकली हम इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन क्रिश्चियन सोर्सेज में ये बात मेंशन्ड है, तो आप वो चीज देख सकते हैं। तो समझने की बात क्या है कि रिलीजन्स में भी इसे अलाउ किया गया है पास्ट में। तो क्या आप सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिंगल आउट करके सिर्फ उन्हें ही गलत कहेंगे, या वो सारे रिलीजन्स में जो हो रहा है वो सब गलत है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अगला सवाल, चेंजिंग स्टैंडर्ड्स विथ टाइम। आप देखिए रिपोर्ट, स्कूल की स्टार्टिंग एज आज आपको पता है कि कहां स्टार्ट होती है? प्ले ग्रुप, फिर नर्सरी, फिर लोअर केजी, फिर सीनियर केजी। लेकिन एक जमाना था जब एजुकेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती थी। अब हम अगर पीछे मुड़ के कहेंगे अरे कितने बैकवर्ड लोग थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो नहीं, ये चेंज हुआ है, जमाने के हिसाब से चेंज हुआ है। आप आज के स्टैंडर्ड से जज करके वो जमाने के बच्चों को नहीं कह सकते। कैसे पेरेंट्स बच्चों को डायरेक्टली फर्स्ट में डाल रहे थे, कुछ प्ले ग्रुप नहीं, कुछ नर्सरी नहीं, कैसे पेरेंट्स से हम ऐसा जजमेंट नहीं कर सकते। आप एक और मिसाल देखिए, ये देखिए चाइल्ड सोल्जर्स के बारे में, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, इंटरनेशनल तौर पर आप ये चीज देख सकते हैं कि 10-10 साल के बच्चे वॉर्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। हालांकि अगर आप इस्लाम के ताल्लुक से देखें तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइनर बच्चों को पार्टिसिपेट करने से मना किया, और जो बालिग हो जाए उनको इजाजत दी, और इसकी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन ये चीज इंटरनेशनल तौर पर होती थी। तो आज के लॉज के हिसाब से आप वो लोगों को जज करो उनकी सिचुएशन के एतबार से, वो नहीं सही होगा। एक और मिसाल, बच्चे फार्म्स में पेरेंट्स की मदद करते हैं, ये कॉमन बात है, पास में चलता आया था। अब आज अगर कोई कहे कि नहीं नहीं चाइल्ड लेबर है ये, तो नहीं, ये वो जमाने की एजुकेशन थी। वो बच्चा वो स्किल सीखता था, वो स्किल को यूज करके कमा सकता था, अपना पेट पाल सकता था, फैमिली को संभाल सकता था। अब हम कहें नहीं चाइल्ड लेबर हो रहा था, तो हमें समझना चाहिए स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं। वो जमाने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग थी, उनको बचपन से ही अपने ट्रेड्स, अपने बिजनेसेस, अपने काम, अपने प्रोफेशन को सीखना पड़ता था।
एक और मिसाल हम देखेंगे, हैंड रिक्शा है, उसको पुल करने वाले को देख रहे हैं और देख के शायद कोई कहेगा कितना जुल्म हो रहा है उस पर, देखो पीछे कौन बैठा है और वो बेचारा उस पर जुल्म हो रहा है। अब ये हम आज देखकर कह रहे हैं ना जुल्म, आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से। हो सकता है कल का स्टैंडर्ड ये होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो आज आने लगी है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो खुद से चलती है ड्राइवर के बगैर, और वो चीज इंटरनेशनल नॉर्म हो जाएगा और तब जाके वो लोग पीछे मुड़ के देखेंगे ये 2022 के लोग, ये लोग ड्राइवर रखते थे, कितना जुल्म, घंटों घंटों तक आदमी बैठा है, कितना जुल्म था उस जमाने में। तो नहीं, आज की जमाने की मजबूरियां हम लोग समझते हैं। तो ये सारी चीज में हमें एक बात समझना चाहिए, क्या एक जमाने की सिचुएशन से दूसरे जमाने को जज करना, क्या ये सही है गलत है? आप इस सवाल को जरूर सोचिए। नेक्स्ट चीज, फेमस पर्सनालिटीज इंडिया की जिनकी चाइल्ड वाइफ्स थी, मैं आपको सिर्फ 3 मिसालें दूंगा। पहली मिसाल बाबा साहेब अंबेडकर की, उनकी बीवी रामाबाई 8 साल की थी जब शादी हुई। तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले ग्रेट लीडर बाबा साहेब अंबेडकर। एक और मिसाल हम देखेंगे एक साइंटिस्ट की, सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्हें कितने सारे अवार्ड्स मिले और कितनी सारी डिस्कवरीज थी उनकी। उनकी बीवी उषा भाटी घोष 11 साल की थी जब शादी हुई। उसी तरह एक तीसरी मिसाल, ग्रेट फिलोसोफर एंड पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी बीवी 9 साल की थी मृणाली देवी जब उनकी शादी हुई। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप इन सारे पर्सनालिटीज और सारे ग्रेट लोगों को, उनको भी वैसे बैड अब्यूजेस और गलत बातें जो आप लोग आज प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से यूज करते हैं, चाइल्ड अब्यूजर्स, रेपिस्ट, औज़ु बिल्लाह, क्या आप ऐसी तोहमतें क्या इन पर्सनालिटीज के ताल्लुक से भी लगाओगे? मैं पूछना चाहता हूं, इंसाफ से बात करिए, ये नहीं सही है, ये गलत बात है। और आप खुद सोचिए एक इंपॉर्टेंट बात कि जहां पर ये मिनिमम एज ऑफ मैरिज बढ़ती जा रही है, 18 तक आ गई, 21 तक आ रही है, फिर और बढ़ेगी आगे। तो आपको पता है क्या होता है इसमें यह होता है कि जितना ये लेट होता है, यानी उतना टाइम बगैर शादी के एक मैच्योर पर्सन को रहना पड़ रहा है। इस वजह से क्या होता है? इस वजह से गलत ताल्लुकात के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं, ये यूएसए की रिपोर्ट है कि यूएसए में 100 बच्चों में से 40% बच्चे आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे हैं। और यही सेम फिगर अगर आप फ्रांस में देखो तो 57% बच्चे आउट ऑफ मैरिज पैदा हो रहे हैं। और ये बच्चे जो आउट ऑफ मैरिज पैदा होते हैं, आप खुद सोचो कि फादर क्या रिस्पॉन्सिबल है? क्या उनका खर्चा देगा? क्या उन्हें अपना नाम देगा? क्या फादर की विरासत में नाम होगा? नहीं, शादी नहीं हुई है, शादी के बगैर पैदा हुए। इसी वजह से कोई ताज्जुब की बात नहीं कि अमेरिका में तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चे, हर 4 बच्चों में से एक बच्चा अकेली मां बड़ा कर रही है, बाप का भी रोल प्ले कर रही है, मां का भी रोल प्ले कर रही है। आप खुद देखिए, सोचिए। इसी वजह से आप देखते हैं कि ऐसी माओं में 28% माएं सीवियर मेंटल डिसेबिलिटी में चली जाती है। आप खुद सोचिए, क्या सही है गलत है? अमेरिका की 33 करोड़ पॉपुलेशन में से 11 करोड़ को एसटीडी हो गया है, ये सारे इस कल्चर की वजह से। तो क्या आप इस कल्चर को, इस चीज को सही समझते हो या गलत समझते हो? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आप गलत समझते हो, गलत ही समझना चाहिए, ये एक रॉन्ग चीज है इंसानियत के एतबार से, तो फिर हमें अपनी एज को जो हम आगे बढ़ाते आए हैं उससे करीब लाना होगा, वहां पे उस पॉइंट पे ले जाना होगा जहां पर लड़कियां मैच्योर हो जाती है, फिजिकल तौर पर प्यूबर्टी तक पहुंच जाती है, फिजिकल तौर पर रेडी होती है, मेंटल तौर पर भी रेडी होती है। तो गलत रास्ते नहीं, उनके लिए सही रास्ता हमें ओपन करना चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चीज के बारे में जरा सोचिए। और इस्लाम ने वो फॉर्मूला दिया जो कोई एज नहीं है, जो ये सारे चीजों के डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। यहां तक जो हमारी बातें हुई, ये बातें सुनकर बहुत सारे लोग अपनी 18 साल की उम्र का ये बैरियर दिमाग से निकाल देते हैं और पीछे मुड़कर हम देखते हैं तो 10 साल 12 साल 140 साल पहले था। और अभी इस जमाने में देखते हैं तो कहीं किसी कंट्री में 12 13 14 15 16 साल दिख रहा है एज ऑफ कंसेंट। और रिलीजन्स में देख रहे हैं तो रिलीजन्स भी अलाउ करते थे। और इलीगल रिलेशंस देखते हैं, इलिसिट रिलेशंस, तो वो लोग भी इलीगल रिलेशंस कम उम्रों में कर रहे हैं। पता ही चलता है कि वो फिजिकली साबित कर रहे हैं कि वो रेडी हैं। तो ये सबसे एक बात तो क्लियर हो गई। अब एक बड़े एतराज की तरफ लोग बढ़ते हैं, वो कहते हैं एज गैप। वो कहते हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एज गैप था, ये बहुत बड़ा गैप था, ये बहुत जुल्म था उस यंग वाइफ पर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 54 ईयर्स ओल्ड, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से रॉन्गली वो 6 ईयर्स बोलते हैं। वो 6 ईयर्स उस टाइम पे नहीं थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 54 ईयर्स थे तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एज तकरीबन 9 ईयर्स थी, और रुखसती के टाइम पे 9 ईयर्स थी। तो एटलीस्ट एक्यूरेटली स्टेट करना चाहिए, लेकिन सवाल अपनी जगह पर है। आइए इसका जवाब देखते हैं। सबसे पहले जो इस्लाम के अंदर जो ये फॉर्मूला है, आपने देखा कि कोई लड़की प्यूबर्टी पहुंची हो, फिजिकली रेडी हो, मेंटली रेडी हो, वो टाइम पे हम उससे अडल्ट कंसिडर करते हैं। मैंने आपको ये सवाल पीछे पहले पूछा था, क्या आप उससे चाइल्ड कहेंगे, अडल्ट कहेंगे? वो अडल्ट है उस टाइम पर। तो यानी हम यहां पर बात कर रहे हैं एक अडल्ट जो 9 ईयर्स की एज में अडल्टहुड के डेफिनेशन तक पहुंच चुकी है। और याद रखिए इस बात को कि अडल्टहुड ये जो डेफिनेशन है ना, ये कोई एक जगह का डेफिनेशन नहीं। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि ये जगह और सिचुएशन और टाइम के एतबार से चाइल्ड किसे कहते हैं ये डेफिनेशन चेंज होता रहता है। तो हम एक मेंटल परसेप्शन फिक्स ना करें। सबसे पहले हम 2 अडल्ट्स की बाय कंसेंट शादी की बात कर रहे हैं। अगर आप चाइल्ड की बात करें तो हम भी नहीं रेडी,
चाइल्ड मैरिज के हम भी फेवर में नहीं है, जो छोटी बच्ची है, जो प्यूबर्टी नहीं पहुंची है, जो फिजिकली रेडी नहीं है, मेंटली रेडी नहीं है, हम भी आपके साथ है। तो यहां पे जो रेडी है उसकी बात हो रही है। आयशा रदियल्लाहु अन्हा वहां पे 9 इयर्स तक पहुंच गई थी, कोई और लड़की हो सकता है 12 तक पहुंचेगी, 15 तक पहुंचेगी, 18 तक पहुंचेगी। तो इस बात को हम याद रखते हुए आइए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भले ही 54 इयर्स थे, लेकिन आप इस बात से इमेजिन करिए कि इवन एट द टाइम ऑफ डेथ सहाबा कहते हैं कि इवन मौत के वक्त पर वलई सफीरा सी वलीयती इशरून शारतन बैदा, उनके बालों में और उनकी दाढ़ी में सिर्फ 20 बाल थे सफेद, क्योंकि वो इतना क्लोजली देखते थे ना, सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना क्लोजली देखते थे, सिर्फ 20 बाल थे सफेद। तो हम एक ऐसे नबी की बात कर रहे हैं जो उस उम्र में भी बिल्कुल उनके बाल ऑलमोस्ट ब्लैक थे। और फिजिकली आप देख सकते हैं, सही बुखारी की हदीस है, सहाबा कहते हैं कि हमने उनसे ज्यादा हैंडसम किसी को नहीं देखा। उनके चेहरे में रौनक, एक ऐसे इंसान का चेहरा जो सच्चा इंसान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकल तौर पर फिट थे, बहादुर थे, काइंड थे, शफकत करने वाले, अच्छे कैरेक्टर वाले, एक नेक इंसान थे, हेड ऑफ द स्टेट थे, कमांडर इन चीफ भी थे आर्मी के, और जज भी थे मेन। तो हम ये देखते हैं इतनी सारी क्वालिटीज थी उनके अंदर। अगर आप देखें इंसानी तारीख में उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कोई इंसान नहीं गुजरा। इस किताब में आप देख सकते हैं द 100 में वो नंबर 1 पे थे, यानी सबसे असरदार शख्सियत थे इंसानी तारीख के। हम उस इंसान के मैरिज की बात कर रहे हैं। आप यहां पे दुनिया में देख सकते हो कि सेलिब्रिटीज, उनसे शादी करने के लिए बहुत एज गैप वाली स्पाउस तैयार हो रही है, या लड़का या लड़की तैयार हो रहे हैं क्योंकि सेलिब्रिटी से शादी करना है। तो ये सेलिब्रिटीज कुछ नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रियल हीरो थे, रियल हीरो। बिलियनर्स, आप बिलियनर्स में से देखिए कितने सारे बिलियनर्स मिलेंगे, 60 इयर्स का एज गैप, 50 इयर्स एज गैप स्पाउस में, 40 इयर्स एज गैप, 90 ईयर का बिलियनर है, 27 साल की बीवी है, और एक का छोड़ करके फिर सेकंड से शादी करता है। उसे कोई गलत नहीं समझता है, बल्कि ये सोचते हैं कि अगर मैं होती तो मैं कर लेती, क्योंकि बिलियनरों की तरफ उनकी नजर होती है। हम कहते हैं बिलियनर्स कुछ नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के ताल्लुक से जन्नत के अंदर उनको सबसे ऊंचा मकाम मिलने वाला है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइव्स हैं वो उनके साथ होगी जन्नत में। अलमरअतु ली आखिरी अज़वाजिहा, कि एक औरत अपने हस्बैंड में जो लास्ट हस्बैंड होगा उसके साथ होगी। उनको मदर्स ऑफ द बिलीवर्स का स्टेटस मिला, पूरी सोसाइटी में वो इज्जत मिली। रिवॉर्ड्स के ताल्लुक से मदर्स ऑफ द बिलीवर्स को अपने अमाल के डबल, अपने डीड्स के डबल रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सारा स्टेटस कोई भी मुस्लिम ईमान वाली औरत वो तो चाहेगी कि उसे ऐसा मौका मिल जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी बनने। और आप खुद देखिए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वर्ड्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, वल्लाही अल्लाह की कसम, इन्नी ला उहिब्बु कुर्बका, मैं पसंद करती हूं आपके करीब होना, वो उहिब्बु मा सररका, और मुझे पसंद है जिस चीज से आप खुश होते हो। तो हम देखते हैं कि वो खुश थी। आप उनकी हदीसें देखिए जो उन्होंने हदीसें बयान की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपको क्या पता चलेगा, दैट शी यूज्ड टू लव हिम डियरली। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यहां 2 अडल्ट्स अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से साथ में जिंदगी गुजारते और हैप्पी जिंदगी गुजारते, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? होता क्या है ना, ये एक माइंडसेट है। अगर आप ये देखो, आप सिर्फ इंटरनेट पे सर्च करिए एज गैप रिलेशनशिप्स, तो आपको बहुत सारे ऐसे एज गैप रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, नॉन मुस्लिम्स, मोस्टली नॉन मुस्लिम्स, जो कहते हैं क्या गलत है, क्या गलत है, मेंटल ब्लॉक है। यूट्यूब पे देखिए कितनी सारी वीडियोस है, वो कहते हैं क्या गलत है। तो वो गलत नहीं है, सेलिब्रिटी शादी करे वो गलत नहीं है, बिलियनर शादी करे वो गलत नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत है। ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स है? ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है तो क्या है, आप खुद सोचो। और आप देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स को तो चॉइस दिया गया था। कुरान में आप आयत देखोगे सूरह 33 वर्स 28, जिसके अंदर उनको चॉइस दिया गया कि अगर तुम चाहते हो दुनिया की जिंदगी, दुनिया की खूबसूरती चाहते हो, फतअलैना, तो आओ, उम्मतिकुन्ना, मैं तुम्हें देता हूं, वो सर्रिकुन्ना सराहन जमीला, तुम्हें बेहतरीन तरीके से मैं तुम्हें आजाद करता हूं। ये चॉइस दिया गया मदर्स ऑफ द बिलीवर्स को। और आप देखोगे कि सब मदर्स ऑफ द बिलीवर्स, सारी वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट ने ये चुना कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वर्ड्स आप देख सकते हैं, क़द इख्तरतुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह और उसके रसूल को चुनती हूं। उनका चॉइस था, बाय चॉइस वो रह रहे थे। ये चॉइस उनको लाइफ में आ गया कि फिर से भी मिला, और उन्हें प्रॉब्लम नहीं था, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और अगर आप देखोगे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो शादी है, ये एक स्पेशल शादी इस एंगल से थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ड्रीम में कमांड आया था, हादिही इमरातुक, ये तुम्हारी बीवी है। ये ड्रीम 2 बार आया था, और प्रॉफिट्स के जो ड्रीम होते हैं वो भी कमांड होते हैं। तो ये कमांड आया था, और इस वजह से उन्होंने शादी की। आप देखोगे कि आगे के सालों में क्या पता चलता है। पता ही चलता है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कोई एवरेज लेडी या अबव एवरेज लेडी नहीं थी, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी थी। उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन से कि आप देखोगे हदीस के फील्ड में टॉप 4 नरेटर्स ऑफ हदीस जो है, जो हदीस स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने वालों में 4th नंबर पे है। वो 2210 हदीसें उन्होंने बयान की। हमारे लिए हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जाम्पल है। लेकिन हमें घर के अंदर उन्होंने कैसे लाइफ गुजारी, घर में क्या करते थे, वाइफ के साथ उनके रिलेशंस क्या थे, फैमिली के साथ वो कैसे रहते थे,
क्लीनलीनेस के मसाइल हैं, औरतों के स्पेशल मसाइल के ताल्लुक से उन्होंने क्या गाइडेंस दी, ये सब डिटेल्स एक लेडी दे सकती थी, उनके घर के अंदर जो लेडी हो, उनकी वाइफ हो। और वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट में आप देखेंगे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, उनकी आउटस्टैंडिंग लेवल ऑफ नॉलेज आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मिलेगी। आप खुद देख सकते हो कि जो फतवे रिकॉर्ड होते हैं, फतवास जो जजमेंट्स एंड रूलिंग्स रिकॉर्ड होती है, उसके अंदर टॉप 6 जिनके रिकॉर्ड हुए उसमें से एक आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है। टीचिंग की स्पेशल एबिलिटी थी उनको, औरतें उनकी तरफ रिफर किया करती थी, खास हज के अंदर उनके खेमे लगते थे, लोग उनसे सवाल पूछते थे, बड़े बड़े सहाबा उनसे रिफर करते थे जब मसाइल अटकते थे, उनके लिए डिफिकल्टीज होती थी, तो उन्होंने गाइड किया एज द मदर ऑफ द बिलीवर। और अगर ये सोचो उनकी अगर डेथ कम उम्री में हो जाती, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की सबकी डेथ कम उम्री में हुई, अगर इनकी भी डेथ कम उम्री में हो जाती तो आपका सवाल बनता था कि कम उम्री में शादी हुई, कम उम्री में मौत हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी उम्र भी थी 67 ईयर्स तक वो जिंदा रही, उन्होंने एक लंबे वक्त तक उम्मत को गाइड किया, उनको रास्ता बताया, उनमें टीचिंग एबिलिटी थी, नॉलेज थी। तो आप इस बात को देखकर जरा गौर करिए, जो डिवाइन विजडम था, जो उस ख्वाब के अंदर जो कमांड था, आगे के सालों में वो साबित हुआ। अगर वो इतनी बड़ी स्कॉलर नहीं बनती, अगर उनके पास ये सारी चीजें नहीं होती, अगर कोई सिखाने की एबिलिटी नहीं होती, अगर कोई बताने की एबिलिटी नहीं होती, तो फिर बात जाके सही साबित हो सकती थी कि हाँ क्या फायदा हुआ इस मैरिज से। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये मैरिज कितनी फायदेमंद थी इस उम्मत के लिए कि आज तक हम उसके बेनिफिट्स को फील करते हैं। और एक और एंगल सोचिए, इस्लाम आने से पहले जमाने जाहिलियत में औरतों पे बहुत जुल्म होता था, और वो जमाने में जो जुल्म होता था वो रोकने वाली फोर्स क्या थी? इस्लाम। इस्लाम ने वो जुल्म को रोका, कुरान में उस जुल्म को रोका गया है, हदीसों में उसके खिलाफ बातें हैं। लेकिन साथ साथ में डिवाइन विजडम ये भी देख सकते हैं कि सीन पर काफी एक लंबे वक्त तक एक ऐसी लेडी है जो आउटस्पोकन लेडी है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। आउटस्पोकन है, बात करने वाली, जिन्होंने औरतों के राइट्स को, विमेन्स राइट्स को कई बार डिफेंड किया, और ये चीज हम देख सकते हैं, ये भी डिवाइन विजडम में से है। और एक और चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपको पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्यों इस चीज को बहुत बुरा समझा जाता है? एज गैप इसलिए बुरा समझा जाता है कि हस्बैंड का इंतकाल हो जाएगा और फिर वो लड़की से कौन शादी करेगा? बेवाओं से, यानी विडो से, मुतल्लका, डिवोर्सी से कोई शादी नहीं करता है। तो जब ऐसा होता है, ऐसी सोसाइटी जब बनी हुई होती है, तो इसमें लोगों को तकलीफ होती है और अंडरस्टैंडेबल है। और कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कम उम्री में अपनी बच्ची की शादी कराओ, कोई कंपलसरी नहीं है इस्लाम के अंदर, ये परमिसिबल की बात हो रही है अगर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी कर रही है। तो अगर वो फिजिकली मैच्योर है, अगर उसे मेंसेस आ चुका है, सब सारे कंडीशंस आई होप आपको अभी तक तो याद हो गए होंगे, और कंसेंट है उसकी, तो लेकिन अंडरस्टैंडेबल बात क्या है कि यहां पे बच्चों से फिर शादी करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन अगर आप एक प्योर इस्लामिक सोसाइटी देखोगे जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिजाइन किया, तो आप देखोगे फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु अन्हा के हस्बैंड ने उनको तलाक दिया, उनका वेटिंग पीरियड खत्म होता है, उनके सामने 3 प्रपोजल्स हैं, वो ये सोच रही हैं कि इनसे शादी करूं, इनसे शादी करूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं उससे करो, थर्ड। आप देखोगे अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके शौहर जाफर बिन अबी तालिब का इंतकाल हुआ, शहीद हुए, वो वेटिंग पीरियड खत्म होता है, उनके सामने प्रपोजल्स हैं, वो सोच रही हैं किससे शादी करें, उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से शादी किया। तो आप ये देख रहे हो ये सोसाइटी इस तरह से हुआ करती थी, तो वो सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें इस बात को समझना चाहिए कि क्यों इस चीज को गलत समझा जाता है। तो मैं सवाल पूछता हूं कि क्या आप सब एज गैप वाली शादियों को गलत कहते हैं, और किस बुनियाद पे गलत कहते हैं? व्हाट इज योर बेसिस?